So today we are going to begin with the lesson number 8, that is maintaining slides in PowerPoint. So let's begin with this lesson. So MS PowerPoint is a program for making presentation with a series of slides. एक ऐसा program है जिसमें आप presentation बनाते हैं एक series of slides के साथ. So slides helps make your presentation organized. जो slides होती है आपकी presentation एकदम organized हो जाती है उनसे और attractive होती है. You can put text. आप text भी put कर सकते हो अपनी slides पे और pictures भी add कर सकते हो. Sometimes you may need to change your presentation after you made it. कभी-कभी आप जब presentation बना लेते हो कभी-कभी आपको उसको change करने की need पड़ती है. In MS PowerPoint you can add, delete और move slides. आप इसमें delete कर सकते हो, add कर सकते हो, move करते सकते हो अपनी slides को. Change how they can look. आप ये भी change कर सकते हो कि वो कैसे लग रही है, look कैसा हो रहा है, look कैसा आ रहा है उनका. आप text boxes भी add कर सकते हो and more. In this chapter we will look at some of the slide features. इसमें हम कुछ slide features के बारे में बात करेंगे. Now modifying the slide layout. कैसे modify करते हैं एक slide का layout? The manner in which the things are displayed on a slide. जिस manner में आपके things display होती है आपके slide पे उसको हम layout कहते हैं. क्या कहते हैं? We call it as layout. A slide layout consists of elements. इसमें elements होते हैं such as placeholders and slide contents. Placeholders are designated as dotted container. Dotted containers होते हैं आपकी slide किस पे होते हैं स्लाइड लेआउट पे. सर्विंग एज डेसिग्नेटेड एरिया फॉर एडिंग टाइल्स. टाइल्स ऐड कर सकते हो, सब टाइल्स, टाइटल्स ऐड कर सकते हो, टाइटल्स ऐड कर सकते हो, बुलेटेड लिस्ट ऐड कर सकते हो एंड मोर. यू कैन एडिट. आप एडिट कर सकते हो, रिलोकेट कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो अपने प्लेस होल्डर्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली. द स्लाइड कंटेंट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट. इसलिए यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट को. टेबल, पिक्चर्स, चार्ट, साउंड, वीडियोस एक्सेट्रा. टू चूज अ स्लाइड लेआउट फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट आपको क्लिक करना है स्लाइड सॉर्टर व्यू पे, बटन जो आपके व्यू टैब में अवेलेबल है. देन आपको सेलेक्ट करना है स्लाइड हुज लेआउट इज टू बी चेंज. इसके आपको लेआउट चेंज करना है. देन आपको क्लिक करना है अपने लेआउट ऑप्शंस पे स्लाइड ग्रुप ऑफ होम टैब में. देन यू कैन चूज अ लेआउट. आपको चूज करना है लेआउट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. द एग्जिस्टिंग डेटा विल बी रीअरेंज अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड लेआउट. जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा वो रीअरेंज हो जाएगा अपने selected layout के accordingly. Repositioning of slides. कैसे reposition करते हैं? Follow the given step to change sequence of slides from one position to another. Click करना है आपको normal view पे बटन पे and in view tab. Then आपको select करना है अपने outline tabs को to view the slide icons. Slide icons को view करने के लिए the slide you want to move. Now select and drag the slide. आपको select करना है, drag करना है उस slide को उसकी position से to the और वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आपको वो ऐड करनी है. Position where you want to place it. The slide will move to the new position. जो आपकी slide होगी वो new position पे move करेगी. Slides can also be repositioned by dragging. उसको drag करके भी आप reposition कर सकते हो to a new position in slide sorter view of. जो slide sorter view होता है आपके side में view tab में. Changing text object. Text के object को कैसे change करते हैं? The normal view options allow user to edit text in the placeholder. Placeholder से आप edit कर सकते हो अपने text को. To do this, follow the given step. First, you have to select the slide whose text is to be edited. आपको select करना है slide को जिसका text आपको edit करना है in normal view. Then click करना है place where you want to add. जहाँ पे add करना और delete करना है text को. Then you have to click on save button और quick access toolbar. आपको save button पे click करना है quick access toolbar में उसको edit करने के बाद. Now cut, copy and paste text और pictures. कैसे cut करते हैं, copy करते हैं, paste करते हैं text और pictures को. Text और pictures can be moved from one place to another. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हो किसके थ्रू? सेलेक्ट करके उनको यूजिंग कट बटन प्रेजेंट इन द होम टैब और Ctrl+X शॉर्ट की. यू कैन ऑल्सो कॉपी डेटा बाय क्लिकिंग ऑन कॉपी बटन. आप कॉपी कर सकते हो डेटा को क्लिक करके. कॉपी बटन प्रेजेंट जो होता है आपके होम टैब में दैट इज Ctrl+C शॉर्ट. Ctrl+C आपकी शॉर्टकट की होती है कॉपी करने के लिए. पेस्ट की होती है Ctrl+V. फिर आप उसको प्रेस करके अपनी पेस्ट कर सकते हो उस Ctrl+V को यूज करके. और आप खाली पेस्ट ऑप्शन पे भी क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं. नाउ डिलीटिंग ऑब्जेक्ट. कैसे डिलीट करते हैं? टू डिलीट और पिक्चर्स टेक्स्ट और पिक्चर इन अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को जिसको आपको डिलीट करना है. एक डॉटेड बॉर्डर होगा अराउंड द प्लेस होल्डर विल अपीयर. देन आपको क्लिक करना है बॉर्डर पे. इट विल चेंज टू द लाइन बॉर्डर. वो आपकी लाइन बॉर्डर में चेंज हो जाएगा. देन आपको प्रेस करना है डिलीट की पे उसको रिमूव करने के लिए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को. यूजिंग वर्ड आर्ट इन स्लाइड्स. MS PowerPoint offers the feature of word art. Word art का फीचर प्रोवाइड करता है आपको ऑफर करता है टू ऐड न्यू ग्राफिक डिफरेंट ग्राफिकल इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट.
फॉलो द गिवन स्टेप टू एड वर्ड आर्ट। क्लिक करना है आपको वर्ड आर्ट बटन पे टेक्स्ट ग्रुप इंसर्ट टैब में, देन सेलेक्ट करना है आपके वर्ड आर्ट स्टाइल को फ्रॉम अ लिस्ट स्टाइल्स दैट अपीयर, देन टाइप करना है आपको टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर, द न्यू स्टाइल विल बी अप्लाइड, जो आपका न्यू स्टाइल होगा वो अप्लाई हो जाएगा। टू फर्दर मॉडिफाई द वर्ड आर्ट बाय चेंजिंग इट्स कलर, गो टू टेक्स्ट फिल ऑप्शन, आपको टेक्स्ट फिल ऑप्शंस पे जाना है अपने फॉर्मेट टैब में एंड सेलेक्ट करना है कलर्स ऑफ योर चॉइस। Adding text using text box. In a slide, space is provided for writing text. एक space provide होता है text लिखने के लिए, but sometimes more data is to be added. कभी-कभी ज़्यादा data add करना पड़ता है form of text में. So follow the given step to add more text to the slide. पहले आपको insert पे जाना है, फिर text group में जाना है, then आपको text box को select करना है, then drag करना है अपने mouse को on the slide, अपनी स्लाइड पे ड्रैग करना है माउस को और स्टार्ट कर देनी है टाइपिंग उस बॉक्स के अंदर। एडिंग क्लिप आर्ट कैसे ऐड करते हैं? क्लिप आर्ट इज अ रेडी टू यूज कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, साउंड्स एंड वीडियो क्लिप्स। ये रेडी टू यूज होती है, आपकी पिक्चर्स, साउंड्स होती है, इसमें वीडियो क्लिप्स होती हैं जो आपके पावर पॉइंट में अवेलेबल होती है। दे कैन एडिट टू स्लाइड टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन। ये आप ऐड कर सकते हो अपनी स्लाइड में इम्प्रूव करने के लिए प्रेजेंटेशन को। To add clip art in a slide, follow the given step. First आपको insert टैब पे जाना है, then click करना है clip art बटन पे in the images group. Then a clip art task pane window will appear. clip art की task pane window appear हो जाएगी on the right side of the screen. Then आपको browse करना है, select करना है clip art of your choice, अपनी चॉइस की क्लिप आर्ट को एंड क्लिक कर देना इंसर्ट पे। आप सर्च बॉक्स में जाके सर्च भी कर सकते हो। नाउ यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर अ स्पेसिफिक क्लिप आर्ट बाय टाइपिंग इट्स नेम इन सर्च पैनल। अगर आप सर्च पैनल में टाइप करोगे तो आप एक स्पेसिफिक क्लिप आर्ट को भी सर्च कर सकते हो। देन क्लिक करना है आपको क्लिप आर्ट पे टू एड इट टू योर स्लाइड, अपनी स्लाइड में ऐड करने के लिए। जो यू नो रोटेशन हैंडल जो होता है आपका, इट इज यूज टू रोटेट शेप। ये आपकी शेप्स को रोटेट करने के लिए यूज होता है। टेक्स्ट को, पिक्चर्स को उन पर क्लिक करके ड्रैग करके माउस को ऑन द रोटेशन हैंडल in the intended direction. Adding shape, shape effect and shadow effect. कैसे shape और shape effect, shadow effect को add करते हैं? Shape different types can be added to a slide. Let's learn how to add shape in a slide. First आपको select करना है shape option illustration group of insert tab में, then एक drop down menu appear हो जाएगा with a wide variety of figures such as lines, oval, rectangles, basic shapes, flowcharts, callouts, etc. Then select करना है आपको shape from the basic shapes. ड्रैग करना है अपने माउस को ऑन द स्लाइड वेयर यू वांट टू ऐड शेप, जहाँ पे आपको शेप को ऐड करना है, एडजस्ट करना है उसकी साइज को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। देन यू कैन ऑल्सो डू मॉडिफिकेशंस। इस पर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो अपनी शेप में बाय एडिंग वेरियस शेप इफेक्ट्स को ऐड करके विच इंक्लूड एडिंग्स। एडिंग इंक्लूड होती है, चेंज कर सकते हो कलर्स को, टेक्सचर्स को। देन फॉलो द गिवन स्टेप्स टू अप्लाई शेप इफेक्ट। फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है अपनी शेप को, यू वांट टू ऐड शेप इफेक्ट टू, जिस पर आपको शेप इफेक्ट को डालना है उस शेप को सिलेक्ट करना है। देन आपको होम टैब पे जाना है, देन टैब करना है अपने ड्राइंग ग्रुप पे, देन शेप इफेक्ट बटन, देन शेड ऑप्शन अवेलेबल होगा, सिलेक्ट करना है आपको शेडो इफेक्ट पे। वहाँ पे यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम द लिस्ट आउटर, इनर और पर्सपेक्टिव शेडो। You can select the shadow option for further shadow effect modification. The selected drawing or shape will have a shadow effect. जो selected shape और drawing होगी उसमें एक shadow effect आ जाएगा। So that's all for this lesson. I hope you like the explanation of this lesson. Thank you and have a fantastic day.